Hello everyone, in this video we will discuss numerical based on topic work and energy. As this topic is related to class 9 science, the numericals that we are going to discuss in video is related to an NCERT. Before I start, some points to be keep in mind before solving any numerical as I discussed in the previous video also. The first is that read your statement carefully. Second, write what is given in the statement. Like one by one, just write it down, whatever is given in your question. Write what you have to find out. Then choose your correct formula and put the correct values. This is the another important point. Put the correct value because many students what they do फॉर्मूला करेक्ट पुट करने के बाद वैल्यूज़ दे पुट रॉन्ग और एंड में आंसर क्या हो जाता है रॉन्ग हो जाता है. सो वाइल पुटिंग वैल्यूज़ यू हैव टू वेरी केयरफुल कि आप सही वैल्यू ही अपने फॉर्मूला के अंदर पुट करें. तो फर्स्ट वी विल डिस्कस द फॉर्मूलाज दैट वी आर गोइंग टू यूज़ in this video to solve different numericals. The first formula that we are going to discuss is work done. The formula for work done is force into displacement, where you can write this formula W equal to F dot S, where W stand for work done, F stand for force and S stand for displacement. Let's understand this formula. Suppose this is a box on which you are applying force in this direction. So जैसे ही आप इस पर force लगाओगे, this box, this is the initial position. After applying force, this box shift to this position. So this is the final position. So means आपने जैसे ही force इस box पे लगाया, this box is moved to this position. It means इस box का क्या हो गया, displacement हो गया. तो जब किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर फोर्स अप्लाई किया जाता है एंड यू फाइंड सम डिस्प्लेसमेंट, तो यू कैन से कि उस फोर्स को लगाने से वी हैव डन सम वर्क. तो इन दैट केस वर्क डन को कैलकुलेट करने के लिए यू विल यूज़ द फॉर्मूला फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट. नाउ नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज़ दैट वर्क डन जो हम कैलकुलेट करते हैं दैट कैन बी अ पॉजिटिव और नेगेटिव. लेट्स अंडरस्टैंड इन विच केस इट विल बी पॉजिटिव एंड in which case it will be negative. See, when you are applying force, you can see the displacement and the direction of force both are in the same direction here. क्या force भी इधर लगा रहे हो और displacement भी object की इसी direction में हो रही है. In that case जो work done होगा that is your positive. But suppose आप force इस direction में लगा रहे हो और displacement इसकी opposite direction में हो रही है. In that case the work done will be your negative. So work done is positive when the force is in the direction of displacement, यानी displacement and force दोनों की direction same होगी. You can simply write down in that case work done equal to force into displacement, where S stand for displacement. Second, work done is negative when force acts opposite to the direction of displacement. Like you can suppose कि आपका जो displacement है that is in a forward direction, तो फोर्स कौन से डायरेक्शन में लगेगा, बैकवर्ड. तो दिस इज द केस जब आपका ऑपोजिट डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट हो रहा है देन द वर्क डन इज योर नेगेटिव. एंड इन दैट केस यू विल राइट डाउन W इक्वल टू F इंटू माइनस एस और नेगेटिव एस, जिसको आप इस तरह भी लिख सकते हो W इक्वल टू नेगेटिव और माइनस F इंटू एस. बाय प्लेसिंग द पॉजिटिव एंड नेगेटिव साइन इन द फ्रंट, from the numerical you can come to know whether the work done is your positive and negative. The second formula that we will use is force equal to mass into acceleration due to gravity. You can write down this formula like F equal to mg, where m stand for mass and g stand for acceleration due to gravity. Let's understand with the help of some examples or with the help of some numericals. A force of 7 Newton acts on an object. The displacement is say 8 meter in the direction of force, यानी यहाँ पे वर्क डन क्या हो रहा है, पॉजिटिव होगा. लेट अस टेक इट दैट द फोर्स एक्ट्स ऑन द ऑब्जेक्ट थ्रू द डिस्प्लेसमेंट. व्हाट इज द वर्क डन इन दिस केस. तो एज आई टोल्ड यू कि जब भी कोई न्यूमेरिकल सॉल्व करना होता है जस्ट स्टार्ट नोटिंग डाउन व्हाट इज गिवन इन योर न्यूमेरिकल एंड व्हाट यू हैव टू फाइंड आउट. सो
according to the numerical, force is given 7 Newton, just note it down. Displacement is given 8 meter. And in the question work done, you have to calculate, just put a question mark. Now write down the formula for the work done. Work done equal to force into displacement. That formula you can write down, W equal to F into S. Now you have to put the value, where F equal to 7 Newton and S equal to 8 meter. Just put the value, W equal to F7 into displacement, it means 8. Just multiply 56. As we know, the unit of force is your Newton and displacement is in meter. So a unit you can write down Newton meter. But the unit for the work done is your joule, that you can write with a capital letter. So this is your answer. Let's see the second example. A pair of bullocks exert a force of 140 Newton. So write down force equal to 140 Newton on a plow. The field being plowed is 15 meter. It means आपका मीटर यानी डिस्प्लेसमेंट की बात हो रही है. So displacement is given 15 meter. How much work is done in plowing the length of the field? It means you have to calculate work done. So work done, you will just put question mark. Now again write down the formula. Work done equal to force into displacement. Just start putting the value. Work done equal to force value is 140 and displacement value is 15. Just put and multiply and you will get your answer, 2100 joule. Let's see the third example. A porter lifts a luggage of 15 kg. kg it means weight यानी मास की बात हो रही है. So mass equal to 15 kg from the ground and puts it on his head 1.5 meter. Meter means displacement की बात हो रही है, 1.5 meter above the ground. Calculate the work done by him. ठीक है, आपको क्या कैलकुलेट करना, वर्क डन. अंडरस्टैंड इट कि सपोज कोई लगेज था जिसका वेट 15 kg है. ठीक है, उस पोर्टर ने क्या करा, सपोज दिस इज़ योर पोर्टर. उस पोर्टर ने क्या किया, 15 kg लगेज को अपने हेड पर प्लेस कर दिया. सो यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्प्लेसमेंट है दैट इज़ गिवन 1.5 मीटर. तो इन दैट केस जब लगेज को उसने अपने सर पे प्लेस करा है with the force, it means he has done some work. तो उस वर्क डन को कैलकुलेट करने के लिए we know the formula W equal to F into S. Now according to the question, फोर्स की वैल्यू हमें नहीं दी हुई है, डिस्प्लेसमेंट इज गिवन और वर्क डन भी निकालना है. सपोज आप कोई फॉर्मूला अप्लाई कर रहे हो तो उस फॉर्मूले के अंदर सपोज यहाँ पे 3 क्वांटिटीज़ है, वर्क डन, फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट. और इस पूरे फॉर्मूलाज के अंदर सिर्फ आपको एक वैल्यू पता है. तो यू कैन नॉट यूज़ दिस फॉर्मूला बिकॉज किसी भी फॉर्मूला को सॉल्व करने के लिए वी नीड कि एटलीस्ट उसकी अगर यहाँ पे 3 क्वांटिटीज़ है तो एटलीस्ट यू नो 2 क्वांटिटीज़, देन यू कैन अप्लाई दैट फॉर्मूला. ठीक है, तो यहाँ हमें निकालना वर्क डन है. तो वर्क डन को कैलकुलेट करने के लिए फोर्स की वैल्यू भी चाहिए और डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू भी चाहिए. ठीक है, तो यानी पहले आप इस वर्क डन के फॉर्मूला को अप्लाई करने से पहले यू नीड अ फॉर्मूला जिससे आप क्या निकाल सको, फोर्स निकाल सको. सो इन द प्रीवियस पार्ट ऑफ द आई आई डिस्कस कि फोर्स को कैलकुलेट करने के लिए वी हैव अ फॉर्मूला M इंटू जी, यानी मास इंटू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी. तो यहाँ पर फोर्स का जो फॉर्मूला पुट कर देते हैं F की जगह. सो वर्क डन इक्वल टू mg इंटू एस. अब इस वर्क डन के अंदर आपको मास की वैल्यू दी हुई है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी दैट वैल्यू इज फिक्स 9.8, बट न्यूमेरिकल को सिंप्लीफाइड करने के लिए यू कैन पुट द वैल्यू ऑफ 10 ऑल्सो. बट अगर किसी क्वेश्चन के अंदर 9.8 इज ऑलरेडी मैंशन देन यू कैन नॉट यूज़ 10. अभी हम फर्दर एग्जाम्पल में इसको देखेंगे. सो नाउ स्टार्ट पुटिंग द वैल्यू. W इक्वल टू mgs, मास इज गिवन 15 kg, acceleration due to gravity 10 to make our calculation easy, otherwise value is 9.8. displacement is 1.5. just multiply all the values and you will get your answer, that is 225 joule. So our topic is numerical based on work and energy. Work we have discussed. Now we are going to discuss the formula that we are going to use for the energy.
सो फॉर्मूला टू बी यूज फॉर एनर्जी. तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल डिस्कस कि जो एनर्जी है दैट वी आर गोइंग टू डिस्कस इज ऑफ टू टाइप दैट वी आर गोइंग टू डिस्कस हियर इन दिस वीडियो इज योर पोटेंशियल एनर्जी. सो पोटेंशियल एनर्जी का मतलब क्या है? द एनर्जी विच इज़ पोजेस्ड बाय अ बॉडी ड्यू टू इट्स शेप और पोजीशन. और कह सकते हैं कि जब ऑब्जेक्ट मोशन में नहीं है एट दैट टाइम जो उसकी अंदर एनर्जी प्रेजेंट होगी दैट इज़ योर पोटेंशियल एनर्जी, जिसको आप सिंपली पी ई से भी शॉर्ट फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हो. अदरवाइज यू कैन यूज ई कैपिटल फॉर द एनर्जी एंड यू विल राइट डाउन पी. दैट विल टेल कि आप जो एनर्जी कैलकुलेट कर रहे हो फॉर्मूला में वो कौन सी एनर्जी है, पोटेंशियल एनर्जी. तो पोटेंशियल एनर्जी को कैलकुलेट करने के लिए वी हैव अ फॉर्मूला mgh. हियर m स्टैंड फॉर मास, g स्टैंड फॉर अगेन एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एंड h स्टैंड फॉर हाइट. ठीक है, तो मास जो हम कैलकुलेट कर रहे हैं यहाँ पर, सो मास की जो वैल्यू होगी दैट इज इन kg. एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी 9.8 न्यूटन पर kg. मेक योर कैलकुलेशन easy in the numerical. You can use the value 10 here. And h stand for height in meter. Okay, second type of energy that we are going to calculate or use is the kinetic energy. It means the energy possessed by the body when the body is in motion. यानी जब कोई object motion में है and that time the energy is your kinetic energy. Again you can represent kinetic energy E for energy and K for kinetic. So suppose Ek is written, it means you are finding kinetic energy. If Ep is written, it means you are finding potential energy. So to calculate kinetic energy, formula is your half mv square. M stand for mass, that will be in kg. V stand for velocity, that will be in meter per second. यानी ऑब्जेक्ट मोशन में है तो मोशन में वो एक पर्टिकुलर डायरेक्शन विथ स्पीड मूव करेगा, दैट मीन्स उसकी क्या होगी, वेलोसिटी. इन एनी न्यूमेरिकल आपको एनर्जी कैलकुलेट करनी है एंड इट इज़ नॉट मेंशन कि पोटेंशियल एनर्जी है या काइनेटिक एनर्जी है. तो यू विल सी इन द न्यूमेरिकल अगर वेलोसिटी की बात हो रही है यानी ऑब्जेक्ट आपका मोशन में है, यानी इन दैट न्यूमेरिकल यू विल कैलकुलेट काइनेटिक एनर्जी और आप काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला यूज़ करोगे. अगर न्यूमेरिकल में वेलोसिटी की बात नहीं हो रही यानी उसमें कौन सी एनर्जी आपने कैलकुलेट करनी है, पोटेंशियल एनर्जी, आप ये फॉर्मूला यूज़ कर सकते हो. क्लियर? तो बाय लुकिंग इन द न्यूमेरिकल यू कैन कम टू नो वेदर यू हैव टू फाइंड आउट पोटेंशियल एनर्जी और kinetic energy. Let's understand with the help of a numerical. An object of mass 15 kg, write down mass of object is 15 kg, is moving with uniform velocity. Keep in mind यहाँ पे velocity कैसी, uniform. It means v is given 4 meter per second. You have to find out kinetic energy. It means kinetic energy आपको यहाँ पर find out करनी है. तो we know the formula for kinetic energy. As we have discussed in the question, it is a uniform velocity. और uniform velocity में हम फॉर्मूला कौन सा यूज़ करेंगे, हाफ एम वी स्केयर. सो फॉर्मूला यू विल पुट हियर हाफ एम वी स्केयर. हाफ एम की वैल्यू पुट करो 15, वी की वैल्यू पुट करो 4 मीटर पर सेकेंड एंड जस्ट सॉल्व इट एंड डू योर कैलकुलेशन एंड यू विल गेट योर आंसर दैट इज़ 120 जूल. अब यहाँ पे क्वेश्चन आता है हमने वर्क डन में भी जूल यूनिट यूज़ करी थी और काइनेटिक एनर्जी में भी क्या हम यूनिट यूज़ कर रहे हैं, जूल, यानी दोनों की यूनिट क्या होती है, सेम होगी. योर आंसर इज़ 120 जूल. लेट्स सी अनदर एग्जांपल. व्हाट इज़ वर्क डन टू इंक्रीज द वेलोसिटी ऑफ अ कार फ्रॉम 30 किलोमीटर टू 60 किलोमीटर पर आवर. यानी यहाँ पे यूनिफॉर्म वेलोसिटी की बात नहीं हो रही है. स्टार्टिंग में उसकी 30 किलोमीटर पर आवर की वेलोसिटी है और लेटर ऑन उसको इंक्रीज़ कर दिया हमने 60 किलोमीटर पर आवर तक. इट मीन्स हमें इनिशियल वेलोसिटी u इज़ गिवन एंड फाइनल वेलोसिटी v इज़ गिवन एंड द मास इज़ गिवन 1500 kg. तो राइट डाउन इनिशियल वेलोसिटी इज़ गिवन 30 किलोमीटर पर आवर. और हमने अभी फॉर्मूला में डिस्कस किया था कि वेलोसिटी की यूनिट किस में होगी, मीटर पर सेकंड में. यानी आपको यहाँ जो किलोमीटर पर आवर में वैल्यू दी हुई है पहले इसको आपको न्यूमेरिकल सॉल्व करने से पहले उसकी प्रॉपर यूनिट में कन्वर्ट करना पड़ेगा, दैट इज़ योर मीटर पर सेकेंड. सिमिलरली राइट डाउन फाइनल वेलोसिटी v इक्वल टू 60 किलोमीटर पर आवर. अगेन फाइनल वेलोसिटी की वैल्यू किस में दी हुई है, किलोमीटर पर आवर में. इट मीन्स यू विल कन्वर्ट दिस वैल्यू ऑल्सो इन मीटर per second. Second, what is given? The mass of car is 1500 kg and write it down.
mass of car equal to 1500 kg. And the question they are asking, what is the work done? And we know the formula of work done in the starting we have discussed. The work done equal to force into displacement. Now see in the question, ना आपको force दिया हुआ है ना आपको displacement दी हुई है. It means you cannot use this formula. तो अब वर्क डन हम कैलकुलेट कैसे करेंगे? अब हमें क्वेश्चन के अंदर इनिशियल एंड फाइनल वेलोसिटी दी हुई है. इट मीन्स यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी की बात हो रही है. एंड जो काइनेटिक एनर्जी भी क्या हो रही है, यूनिफॉर्म नहीं है. इनिशियल अलग है, फाइनल अलग है. तो जो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी होता है उसी को हम कहते हैं. सो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी जो होता है दैट विल योर वर्क डन. यानी इस क्वेश्चन में जो वर्क डन आपने कैलकुलेट करना है उसको कैलकुलेट करने के लिए आप पहले क्या निकालोगे, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी. यानी इस क्वेश्चन के अंदर कितना काइनेटिक एनर्जी इनिशियल से फाइनल में चेंज हुआ है, दैट विल बी योर वर्क डन. ठीक है. और काइनेटिक एनर्जी को कैलकुलेट करने का फॉर्मूला वी आर हैविंग. बट बिफोर अप्लाइंग टू द फॉर्मूला, काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला अप्लाई करके हम काइनेटिक एनर्जी निकालें उससे पहले वी नो कि इनिशियल वेलोसिटी एंड फाइनल वेलोसिटी जो किलोमीटर पर आवर में दी हुई है, फर्स्टली हमें इसे किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा, मीटर पर सेकेंड में. फॉर दिस कन्वर्जन इनिशियल वेलोसिटी इज 30. इसको आप किससे मल्टीप्लाई कर दोगे, 5/18. जैसे आप इसको 5/18 से कन्वर्ट करोगे आपकी किलोमीटर पर आवर की यूनिट किस में कन्वर्ट हो जाएगी, मीटर पर सेकेंड में. जस्ट कैलकुलेट इट एंड यू विल गेट योर आंसर 25/3 मीटर पर सेकेंड. यानी आपने इनिशियल वेलोसिटी जो किलोमीटर पर आवर में दी हुई थी उसको कन्वर्ट कर दिया मीटर पर सेकेंड में. और उसको कन्वर्ट करने के लिए आप सिंपली उस वैल्यू को आपने 5/18 से मल्टीप्लाई कर दिया. ठीक है. अब 5/18 से क्यों मल्टीप्लाई करें, लेट्स सी हियर कि किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट करने के लिए आप क्या करोगे. एज वी नो 1 किलोमीटर इक्वल टू 1000 मीटर, 1 आवर इक्वल टू 60 मिनट एंड 1 मिनट इक्वल टू 60 सेकेंड. तो 1 आवर में कितने सेकेंड्स हो गए, 60 × 60 3600 सेकेंड. अब किलोमीटर पर आवर इसको कन्वर्ट करना है मीटर पर सेकेंड में. तो किलोमीटर की वैल्यू आ गई यहाँ पर इक्वल टू 1000 मीटर और आवर को सेकेंड में कन्वर्ट करना है यानी 3600. इसको आप सॉल्व करो, यू विल गेट द वैल्यू 5/18. ठीक है. तो टू मेक इट ईजी, एवरी टाइम जहाँ पर भी आपको किलोमीटर पर आवर की वैल्यू को मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट करना हो, आप डायरेक्टली उसको 5/18 से मल्टीप्लाई करके अपना जो कैलकुलेशन पार्ट है उसको थोड़ा सा इजी कर सकते हो. ठीक है. अदरवाइज आपने इसको प्रॉपर उस वे में करना है तो आप सीधा लिखोगे 30 × 1000/3600. दैट विल बी क्वाइट डिफिकल्ट. तो हम इसको सिंप्लीफाइड करने के लिए जस्ट हम इसको 5/18 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं एज वी आर गेटिंग दिस वैल्यू फ्रॉम दिस कन्वर्जन. ठीक है. सिमिलरली फाइनल वेलोसिटी की वैल्यू अगेन 60 किलोमीटर पर आवर दी हुई है. इसको आप किस में कन्वर्ट करोगे, मीटर पर सेकेंड में. एंड वी नो पूरा 1000 एंड 3600 से मल्टीप्लाई करने से बेटर है यूज़ अ शॉर्टकट, 5/18 से मल्टीप्लाई करो एंड यू विल गेट द वैल्यू इन मीटर पर सेकेंड. एंड द वैल्यू ऑफ फाइनल वेलोसिटी इज़ 50/3 मीटर पर सेकेंड. अब आपका फर्स्ट स्टेप हो गया कि आपकी यूनिट जो है थी वो कन्वर्ट हो गई किलोमीटर से मीटर पर सेकेंड में. नाउ नेक्स्ट स्टेप इज़ दैट आपने काइनेटिक एनर्जी निकालना है. तो सबसे पहले हम इसकी इनिशियल काइनेटिक एनर्जी निकालेंगे, फिर फाइनल काइनेटिक एनर्जी निकालेंगे. ठीक है. तो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी निकालने के लिए फॉर्मूला क्योंकि 12mv², क्योंकि यहाँ पर इनिशियल वेलोसिटी के लिए हम वैल्यू क्या यूज़ करते हैं, u². तो 12m की वैल्यू आपको दी है 1500. u की वैल्यू हमने निकाली 25/3. तो यहाँ पुट कर दो 25/3 स्क्वायर है तो 2 टाइम मल्टीप्लाई होगा 25/3 × 25/3. इसको सॉल्व करोगे एंड यू विल गेट द वैल्यू हियर इन द जूल. तो आपकी इनिशियल काइनेटिक एनर्जी आ गई 156,250/3 जूल. ऐसे आप क्या निकालोगे, फाइनल काइनेटिक एनर्जी. सेम फॉर्मूला 12mv² यूज़ करोगे क्योंकि फाइनल वेलोसिटी के लिए हम v यूज़ करते हैं और इनिशियल वेलोसिटी के लिए हम u यूज़ करते हैं. अगेन स्टार्ट पुटिंग द वैल्यू. 12m की वैल्यू यानी मास की वैल्यू दी हुई है 1500. v हमने कैलकुलेट किया था 50/3, तो हम यही वैल्यू यहाँ पर यूज़ करेंगे.
50/3, अगेन स्क्वायर है तो 2 टाइम 50/3 इंटू 50/3. जस्ट सॉल्व इट and you will get your final kinetic energy 625,000 जूल. अब हमें पता है वर्क डन क्या होता है, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, यानी फाइनल काइनेटिक एनर्जी यानी फाइनल वेलोसिटी से जो आपने निकाली है माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी जो आपने इनिशियल वेलोसिटी से निकाली है. दोनों की वैल्यू पुट करो. फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी. जस्ट पुट द वैल्यू फाइनल माइनस इनिशियल. इसको सॉल्व करो एंड यू विल गेट योर वर्क डन. सो द आंसर इज 156250 जूल. तो इस केस में आपका वर्क डन कैलकुलेट हो गया. लेट्स सी द नेक्स्ट न्यूमेरिकल. फाइंड द एनर्जी पोजेस्ड बाय एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास 10 kg. राइट डाउन मास ऑफ ऑब्जेक्ट यानी m इज इक्वल टू 10 kg व्हेन इट इज़ एट द हाइट ऑफ 6 मीटर, यानी हाइट 6 मीटर दी हुई है अबव द ग्राउंड. कोई वेलोसिटी की बात नहीं है और बट वो कह रहे हैं कि एनर्जी फाइंड आउट करना है, यानी आपको यहाँ पे कौन सी एनर्जी निकालनी है, पोटेंशियल एनर्जी. ठीक है, बिकॉज दिस इज द एनर्जी प्रोजेस्ड बाय द ऑब्जेक्ट और ये कोई मोशन में नहीं है. तो यू विल पुट द फॉर्मूला फॉर पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू mgh. मास की वैल्यू आपको दी हुई है 10, g यानी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑलरेडी स्पेसिफाइड 9.8. तो यहाँ पर आप 10 नहीं यूज़ करोगे बिकॉज इट इज़ ऑलरेडी स्पेसिफाइड कि 9.8 मीटर एंड h इज़ गिवन 6. just multiply it and you will get your potential energy 588 joule. Let's see another example. An object of mass 12 kg, write down mass equal to 12 kg at a certain height above the ground. If the potential energy of the object is 480 joule, potential energy कितनी हुई है 480 joule. Find the height at which the object is with respect to the ground. अब यहाँ पे आपको क्या निकालनी है, हाइट कैलकुलेट करनी है. तो यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी दिया हुआ है. पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला हमें पता है क्या होता है, mgh. तो यहाँ पोटेंशियल एनर्जी दिया हुआ है, m दिया हुआ है, g दिया हुआ है, h नहीं दिया हुआ है. h आपको कैलकुलेट करना है, यानी पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्मूला को कैलकुलेट करके यू कैन फाइंड आउट द हाइट हियर. सो पुट द वैल्यू पोटेंशियल एनर्जी 480 इक्वल टू m 12, g एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी वी नो 10 और h यहाँ पे हमें फाइंड आउट करना है. h को निकालने के लिए आप ये दोनों टर्म इसके नीचे ले जाओगे. 480 डिवाइडेड बाई 12 इंटू 10. जस्ट डू द कैलकुलेशन एंड यू विल गेट द वैल्यू 4 मीटर. तो ऑब्जेक्ट इज एट 4 मीटर हाइट. तो किसी भी न्यूमेरिकल को सॉल्व करने से पहले जस्ट रीड योर स्टेटमेंट केयरफुली एंड यू विल कम टू नो कौन सा फॉर्मूला अप्लाई होगा और उसको कैसे सॉल्व करना है. तो सपोज यहाँ पे मास नहीं दिया होता, पोटेंशियल एनर्जी दी होती एंड यू नो द फॉर्मूला ऑफ पोटेंशियल एनर्जी. तो जस्ट लुक इन दैट फॉर्मूला, क्या उसको हम यूज़ करके यहाँ पे मास निकाल सकते हैं. तो अगर आपको किसी फॉर्मूला के अंदर उसकी एक क्वांटिटी को छोड़कर अगर सारी क्वांटिटीज़ दी हुई है, इट मीन्स यू कैन यूज़ दैट फॉर्मूला टू कैलकुलेट दैट पर्टिकुलर क्वांटिटी. जैसे यहाँ पर हमने h कैलकुलेट करा क्योंकि हमने h का कोई फॉर्मूला डिस्कस नहीं करा था, बट हमें पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला पता था. तो हमने यहाँ देखा कि हमें सारी क्वांटिटीज़ दी हुई है एक्सेप्ट h. तो वी कैन यूज़ दिस फॉर्मूला टू कैलकुलेट हाइट. थैंक्स फॉर वॉचिंग. इफ़ यू लाइक दिस वीडियो, like, comment and share, and please subscribe this channel. If you have any doubt or you want more example to be discussed here, kindly comment.